Hello students. Today's topic is commercial bank. Meaning as well as function we will study today. A commercial bank is that financial institution. When we are talking about bank, it means we are talking about financial institutions which accepts deposit from the general public and offers loans. Means it is having two main functions. What are these? Accepts deposits as well as offers loans to the people for the purpose of consumption and investment. Means it provide loan for the two purposes, for consumption as well as investment. It accept deposit from the general public. The money we are having spare with us, we can deposit with the bank for the investment purpose. Bank will provide us interest on that. As the name suggests, commercial activities, the any institution which is involved in commercial activities is induced to have profit. When it is made up for earning profit, how the profit is generated? It accepts deposits and offers loans. By accept deposit, it gives rate of interest to the depositors. As suppose I have deposited some amount in the bank will provide me interest. And if anybody takes loan from the bank charges rate of interest. The difference of these two rates, accepting deposit as well as offering loans, bank charges interest rate. The difference between the two rates is the main source of income of the bank, and this difference is known as spread. Interest on loan minus interest on deposit, the difference between the two is known as spread, and this is the source of income of the bank, and because this is the reason of the generation of profit. Now for the definitions. According to Oxford Dictionary, a commercial bank is that financial institution which accept deposit from the public and offers loans for the purpose of consumption or investment. According to the Indian Banking Companies Act 1949, banking company is one which transact the business of banking, which means the accepting for the purpose of lending or investment. Means accept करता है लोन, इन अमाउंट एक्सेप्ट करता है लोगों से, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है किस पर्पस के लिए? बिकॉज इट्स विलिंग टू गिव लोन फॉर विच पर्पस? फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट of deposit of money from the public repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft, orders or otherwise. According to the Crowder, a commercial bank is an institution which collects money from those who have it in spare or who are saving it out of their income. Those who are willing to save, उनसे ये क्या करता है? कलेक्ट करता है एंड लैंड दिस मनी आउट टू दोज हु रिक्वायर्ड, जिनको रिक्वायरमेंट है उन्हें प्रोवाइड करता है. Clear? These are the definition given by the authors and these must be learned according to word to word. Now types of bank accounts. When we are seeking accepting deposits, there are two types of deposits: checkable deposit and non checkable deposit. Checkable means वो deposit जिनके against वो check issue कर सकते हैं. Means these are demand deposit. This can be demanded any time, सच एज सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट. सेविंग अकाउंट के लिए आपके पास क्या होता है? एटीएम होता है ना, आपके पास चेक बुक होती है, आपका भी अमाउंट रिक्वायर्ड है, वेन एवर यू रिक्वायर्ड यू कैन विड्रॉ द अमाउंट. एंड करंट अकाउंट इज स्पेशली मेंट फॉर द बिजनेस क्लास. और बिजनेस क्लास क्या होती है कि दिन में कितनी एक्टिविटीज़ करती है, कितनी ट्रांजेक्शन करती है, तो बैंक क्या करता है, इनको विदाउट इंटरेस्ट जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है. एंड वन इज नॉन चेकेबल डिपॉजिट, जिनके अगेंस्ट अपन चेक इशू नहीं कर सकते. जैसे फिक्स डिपॉजिट है, आफ्टर अ टाइम पीरियड, सपोज आई हैव FD ऑफ 1 year. Till the completion of 1 year I cannot take my money back.
रेकरिंग डिपॉजिट जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद हमें डिपॉजिट करना होता है. सपोज मैंने 1000 रुपीज़ पर मंथ का रेकरिंग डिपॉजिट कराया, तो मुझे हर मंथ 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करने पड़ेंगे. जो डेट मैंने फिक्स की उस डेट तक मुझे 1000 रुपये पर मंथ डिपॉजिट करना पड़ेगा. मैंने कब तक का वो लिया, दैट डिपेंड्स ऑन मी. Now, checkable deposits are those deposits against which checks can be issued and therefore money can be withdrawn anytime. कभी भी मनी निकाल सकते हैं. जिसके लिए आप चेक इशू कर सकते हो, मनी कभी भी निकल सकती है. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स. नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट जिनके दोज डिपॉजिट्स अगेंस्ट विच चेक कैन नॉट बी इशूड एंड देयरफॉर मनी कैन नॉट बी विड्रॉन एनी टाइम. मनी आप किसी भी टाइम नहीं निकाल सकते. इंस्टेड मनी इन दीज डिपॉजिट्स इज केप्ट एज रिजर्व विद द बैंक फॉर सम फिक्स टाइम पीरियड. एक हमने फिक्स कर दिया कि इस टाइम पीरियड तक वो बैंक पे पास रिजर्व में रहेगी. तो दीज आर नोन एज फिक्स डिपॉजिट्स. इट मे बी fixed term deposit, it may be recurring deposits. Now, checkable amount under this saving account and current account. As I told you earlier, saving account is operated by the small savers. तो जितना भी पैसा आप डिपॉजिट करना चाहो, थोड़ा अमाउंट है थोड़ा डिपॉजिट करना चाहो थोड़ा कर सकते हो, ज़्यादा है आप ज़्यादा कर सकते हो. देयर इज़ नो लिमिट. आपको एक मिनिमम अमाउंट रखना है अपने सेविंग अकाउंट में, बाकी की कोई टेंशन नहीं है. आप जितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हो डिपॉजिट कर सकते हो. कोई इसमें लिमिट नहीं है कि आपको इतना डिपॉजिट करना ही है. ठीक है. और कोई इंटरवल भी नहीं फिक्स है. आप कभी भी डिपॉजिट कर सकते हो, कितना भी अमाउंट इसमें डिपॉजिट कर सकते हो. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इज कंपैरेटिवली लेस. सबसे जो कंपैरेटिवली लेस एज FD and RD. And current account is operated by business class. The number of transaction of these classes is very high. Number of transaction means on the daily basis. Bank do not pay interest on these accounts. It is providing facility to the business class. Non-checkable fixed term deposit, the deposit that can be withdrawn after a specific period of time, are called fixed term deposits. Suppose I have deposited 10,000 rupees for 1 year. So till 1 year, the date comes, only that amount will be transferred to my account. Till then it is reserved with the bank. So this is known as fixed term deposit. Means fixed. आपने टर्म जो है फिक्स कर दिया, टाइम लिमिट जो है डाल दिए कि आपको 1 साल के लिए डिपॉजिट करना है, 2 साल के लिए करना है, वट एवर इज डिसाइडेड बाय यू. रेकरिंग डिपॉजिट, in this account a fixed amount is deposited within fixed time interval. As I have given you earlier example of rupees 1000, as a person deposits rupees 1000 every month till 1 year. So after completion of 1 year, the person can withdraw the money. The interest rate on this account is more than saving account but less than fixed. यानी कि ये दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोनों के मिड में आ जाता है. फिक्स से ज़्यादा कम मिलती है और सेविंग से इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलती है. नाउ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक के फंक्शंस जो हैं आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड है. प्राइमरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन, जनरल कैटेगरी फंक्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन नेम ही सजेस्ट कर रहा है, जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ी है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन. अब हमारे पास मेन 2 फंक्शन हो गए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एज वेल एज एडवांसिंग लोन. तो पहला क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में हमने 4 तरह के अकाउंट देखे: सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट. कमर्शियल बैंक 4 तरह के अकाउंट खोलता है और उसमें हमारे डिपॉजिट जो हमारा एक्स्ट्रा मनी है उसे सेव करता है, उसे डिपॉजिट करता है. एडवांसिंग लोन मीन्स हमें लोन प्रोवाइड करता है. द पर्सन हु इज इन नीड ऑफ मनी कैन टेक लोन फ्रॉम द बैंक. फर्स्ट है लोन और एडवांस. हमें लोन चाहिए या एडवांस चाहिए तो हम बैंक से कांटेक्ट करके ले सकते हैं. सेकंड इज कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट इज अ शॉर्ट टर्म लोन, वेरी शॉर्ट टर्म लोन.
For suppose a businessman required loan for working capital for a very short time period, for 15 days, 10 days, for 2 months, so this is known as cash credit. This is provided to the businessman. Third is overdraft. Name suggests overdraft means whatever we have deposited, if we withdraw more than that, this is known as overdraft. सपोज मेरे बैंक में 10,000 रुपए हैं और मैंने किसी को चेक दे दिया 12,000 रुपए का, देन देयर इज अ डिफरेंस कि मेरे अकाउंट में 10,000 है, हाउ डू आई विड्रॉ 12,000? तो बैंक अपने जो रेपुटेड कस्टमर्स हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा विड्रॉ कर लें, बट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, सो दैट देयर गुडविल मे नॉट इंटरप्ट. अगर सपोज वो चेक बाउंस हो जाए तो मार्केट में गुडविल कैसे डाउन हो जाती है, कि एक चेक बाउंस हो जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि बैंक में इतने भी पैसे नहीं है कि वो हमारी अमाउंट पे कर सके, बट एनी टाइम इट मे बी प्रॉब्लम. तो बैंक क्या है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उन कस्टमर्स को जो कि बिजनेसमैन है, और उनको एक लिमिट प्रोवाइड की जाती है कि इस लिमिट तक आप ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो फॉर ए टाइम बिंग. Discounting the bill of exchange. Bill of exchange are issued by the businessman when they are going to purchase or sell goods and services. अब दो बिजनेसमैन हैं, ए एंड बी. अब ए ने गुड्स सेल की बी को और बी से एक्सेप्टेंस ले ली कि बी 2 मंथ्स के बाद पेमेंट कर देगा ए को. अब ए के पास जो अमाउंट आएगा वो 2 मंथ्स के बाद आएगा, लेकिन अगर ए को पहले पैसों की ज़रूरत हो तो बैंक क्या अब बी से तो नहीं मांग सकता, क्योंकि बी ने तो लिख के दे दिया कि मैं तो 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, और हमने ये मान भी लिया कि 2 महीने बाद पेमेंट कर देना. हाँ, फिर हम 2 महीने पहले कैसे मांग लें उससे पैसे, और हमें पैसों की ज़रूरत है. तो ए बैंक से उस बिल को डिस्काउंट करा के पैसे एडवांस में ले सकता है, और जब डेट आएगी तो बैंक बी से पैसे ले लेगा. तो ये जो फैसिलिटी है दैट इज नोन एज डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज. जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसे टाइम से पहले कैश करा लेना है, इसके बदले में बैंक थोड़ा सा डिस्काउंट काट लेता है, इंटरेस्ट ले लेता है, तो दैट इज़ अ चार्ज. उस चार्ज के बदले हमें एडवांस में पैसे मिल गए, हमें 2 महीने बाद पेमेंट मिलनी थी, हमने बैंक से रिक्वेस्ट की, बैंक ने हमें जल्दी दे दी. तो जब 2 महीने टाइम पूरा हो जाएगा तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट कहाँ से मिल जाएगी, हमारे कस्टमर से, तो हम उससे लेके बैंक को दे देंगे, तो हमारा अभी काम चल गया. तो दिस इज अ टाइप ऑफ लोन प्रोवाइडेड टू बिजनेसमैन. Now, agency related function. Agency related function are those function which can be done by bank for or on behalf of customer. यानी कि बैंक अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे जो फंक्शन करता है दैट आर नोन एज एजेंसी रिलेटेड फंक्शंस. जैसे कि अमाउंट ऑफ चेक कलेक्शन, चेक को कलेक्ट करना, चेक्स कलेक्शन का अमाउंट, चेक की पेमेंट करनी है, तो वो कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है. किसके बिहाफ पे कर रहा है, कस्टमर के बिहाफ पे. पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स के बिहाफ पे. सपोज हमने रिटर्न में दे रखा है बैंक को कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भर देना, हमारे ये चार्जेस पे कर देना, ये डेट आए तो हमारी LIC पे कर देना. तो जो जो हमने इंस्ट्रक्शन दे रखी है रिटर्न में, बैंक वो सारी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डेट वाइज पेमेंट कर देता है. इसी तरह से रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से वो हमारे लिए अमाउंट भी कलेक्ट कर लेता है. ज़रूरी नहीं कि कस्टमर हम तक आके पेमेंट करें, कस्टमर डायरेक्ट हमारे अकाउंट में भी डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक जो है वो हमारे कस्टमर से भी अमाउंट कलेक्ट करता है. देन सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज़. जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ मीन्स शेयर्स, डिबेंचर्स, इस तरह की सिक्योरिटीज़ हैं, बैंक हमारे लिए सेल या परचेज भी कर सकता है ऑन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय अस. फिर ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, दैट इज़ ऑल्सो डन बाय द बैंक. वर्किंग एज ट्रस्टी, ट्रस्टी मीन्स बैंक किसी एक फॉर्म का ट्रस्टी बन के भी उसके सारे अकाउंट्स को मेंटेन कर सकता है. तो दीज आर द एजेंसी रिलेटेड फंक्शंस. एजेंसी रिलेटेड फंक्शंस मीन्स द फंक्शंस डन बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स.
देन जनरल यूटिलिटी फंक्शंस. जनरल यूटिलिटी मीन्स इन फंक्शंस के अलावा बैंक क्या क्या फैसिलिटीज़ और प्रोवाइड कर रहा है. जनरल फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड कर रहा है. सपोज बैंक ने लॉकर प्रोवाइड कर दिए, तो लॉकर फैसिलिटी क्या है. हमारी जो कीमती चीज़ें हम बैंक में सेव करके रख देते हैं, तो क्या है, दैट आर द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द बैंक. एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़. तो फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी. सेकेंड, फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी. फॉरेन एक्सचेंज, सपोज हमारे पास किसी और कंट्री की करेंसी आ गई है, हमें वो अपनी कंट्री में कन्वर्ट करानी है, तो वो भी किससे होती है, बैंक से प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी. बैंक के पास जाएंगे तो बैंक हमें उस कंट्री की करेंसी दे देगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है. सपोज हमने वीज़ा लगवा लिया, हमने पास कहीं बाहर जाना है, किसी और कंट्री में जाना है, तो उस कंट्री की करेंसी हमें रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू तो उस कंट्री में नहीं है. तो हमें उस कंट्री में जाने के लिए उस कंट्री की करेंसी की रिक्वायरमेंट है. तो हमें वो करेंसी कैसे मिलेगी, वो करेंसी कौन प्रोवाइड करवाएगा, वो हेल्प कौन करता है, द बैंक इज प्रोवाइडिंग दीज हेल्प्स. ट्रैवल चेक फैसिलिटी मीन्स आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो इस तरह की ट्रैवल चेक फैसिलिटी भी बैंक जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, सो दैट वी शुड नॉट टेक सो मच अमाउंट विद अस. क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट क्रिएट करना, द प्रोसेस यू विल लर्न इन द नेक्स्ट मीटिंग, in the next topic. When I took the next class, then I teach you this topic, creation of credit. Banks with a small amount will make the amount more larger than it is in the hands. Collection and publication of information. Banks will collect information related to customers, and on the behalf of customer, it can provide the information to others also. Suppose if you want any information about your and other businessmen, you can take the information from the bank, because bank will provide the true information. The collection and publication of information, कलेक्ट भी करता है और जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पब्लिक भी करता है. क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी. Credit card facility, you know the credit card, debit card, credit card facility is also provided. In debit card, you are having money and you can use that money by using ATM or by at shopping mall, you can pay with the help of that. In credit card, till the limit is prescribed by your bank, of that much amount you can purchase any of the commodity. And internet banking, with the help of internet banking is bank is providing so much facilities. Mobile banking, in nowadays bank is providing facilities on your mobile. So these are the functions of commercial bank. What are these? First is primary function, second is agency related, and third one is general utility functions. Now do this, read properly and make proper notes and do the answers of the following questions. I will send you the questions later on.